اسپیشل ڈیولپمنٹ فنڈ سے یہ کبھی شہر ٹھیک نہیں ہو سکتا. جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہم نیا لے کے آ رہے ہیں, ہر شہر کا اپنا الیکشن ہوگا, میئر کا ڈائریکٹ الیکشن ہوگا, انڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوگا کہ پہلے یونین کاؤنسل کا الیکٹ ہو پھر وہ کریں, اس کے اندر پیسہ چل جاتا ہے بدقسمتی سے. چینی کا مافیا ہے, انہوں نے یہ جو بھی کمپٹیشن کمیشن کی رپورٹ آئی ہے تو انہوں نے تو یہ کہا کہ انہوں نے ملک کے کارٹلائزیشن کی ہے, منوپلی بنا کے تو چینی کی قیمت اوپر لے کے گئے ہیں. اس کے خلاف ہے. آپ جائز طریقے سے نفع کمائیں. تاجر جائز نفع کمائیں, چینی مافیا کی طرح ناجائز منافع خوری نہ کریں. وزیر اعظم عمران خان کا فیصل آباد میں تاجروں سے خطاب, کہا حکومت کی ذمہ داری ہے وہ شہریوں کو سہولیات فراہم کرے. پنجاب میں تاریخ کا بہترین بلدیاتی نظام لا رہے ہیں. صرف لاہور پر پیسہ خرچ کریں گے تو پنجاب کے باقی شہر پیچھے رہ جائیں گے. نئے نظام میں میئر کا براہ راست سلیکشن ہوگا. ایک دن آئے گا کہ مانچسٹر کہے گا کہ فیصل آباد ہم سے آگے نکل گیا. انسان کو سوچ بڑی رکھنی چاہیے. یہ بھی بولے ہمیں مہنگائی پر بہت برا بھلا کہا گیا, لیکن اس کی وجہ ملک کی برآمدات کم اور درآمدات زیادہ تھیں, تجارتی خسارہ بہت زیادہ تھا. معیشت سے متعلق مشکل فیصلے کیے. دھاگے بیچنے سے تو یہ ملک آگے نہیں بڑھنے لگا نا. آم بیچ رہے ہیں یا یہ, ان سے تو کوئی پیسہ نہیں بنتا. پیسہ بنتا ہے انڈسٹری سے. ہم انشاءاللہ اب ہمارا پورا زور ہے, یہ سارے انسینٹو دے رہے ہیں مشکل حالات میں کہ انڈسٹری چلنی شروع ہو. اس سے روزگار بھی ملے گا, اس سے دولت بھی بنے گی, ویلتھ کریشن, اس سے ہم قرضے بھی واپس کر سکیں. صرف دھاگا اور آم بیچ کر پیسہ نہیں بنا سکتے, پیسہ صنعتوں سے بنتا ہے. وزیر اعظم عمران خان کی فیصل آباد میں صحافیوں سے بات چیت, کہا ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے بہت مشکل سے جامع پیکج لے کر آئے. انڈسٹری کے لیے پی کار ختم کر کے آدھی قیمت پر بجلی فراہم کر رہے ہیں. ہمارا مقصد دوسری صنعتوں کو بھی اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے. جب تک انڈسٹریز کی ان پٹ سستی نہیں ہوگی وہ مقابلہ نہیں کر سکے گی. صنعت کاری ہوگی تو ملک آگے بڑھے گا. مشکل حالات کے باوجود صنعتوں کو مراعات دے رہے ہیں. جب تک یہ جعلی حکومت ہمارے سروں پر سوار ہے آٹا چوری نہیں رکے گی. سوائے روز آسمان پہ جاتی ہوئی مہنگائی کے, تکلیفوں کے, تم نے اور پاکستان کو دیا ہی کیا ہے جو تم کے پاکستان میں ووٹ مانگنے پہنچ گئے تھے. مسلم لیگ نون کا مانسہرہ میں بھرپور سیاسی طاقت کا مظاہرہ, بڑا مجمع اکٹھا کر لیا. مریم نواز کی للکار, کہا جعلی حکومت کی موجودگی تک ملک نہیں چل سکتا. جب تک یہ حکومت ہے آٹا اور چینی چوری نہیں رکے گی. نواز شریف جلد واپس آ کر چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے. جی بی کے عوام نے حکومت کو ووٹ نہیں دیا. جعلی نتیجے کو کوئی ماننے کو تیار نہیں. تھوڑی سی شرم و حیا والے ہوتے تو اپنے گھر سے باہر نہ نکلتے. نواز شریف کے بیانیے نے عمران خان کی سیاست کو دفن کر دیا. حکومت کو آخری دھکا دینے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد جانا ہوگا. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے اپوزیشن کا لفظی ریمانڈ لے لیا. کہا آپ مسترد شدہ ہیں, آپ کی حیثیت کیا ہے جو نتائج نہیں مانتے. آپ کے سنگین جرائم ہیں, ملکی خزانے پر ڈاکہ ڈالا. یہ وقت بھی دیکھنا تھا چور ہمیں ڈانٹ رہے ہیں. اپوزیشن ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے, وبا پر سیاسی ناٹک کر رہی ہے. عوام آپ کے بیانیے نظریے کو ردی کی ٹوکری میں ڈال چکے. آپ کو 2018 میں پھر جی بی میں عوام نے مسترد کیا. شبر زیدی کی تردید کے بعد فضل الرحمان کو معذرت کرنی چاہیے. مولانا کو گلگت بلتستان میں ایک سیٹ بھی نہ ملی. جس ڈٹائی کا یہ مظاہرہ کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. گلگت بلتستان جیسا شفاف الیکشن کبھی نہیں دیکھا. جمہوریت کی جیت ہوئی, شیخ رشید کی پریس کانفرنس, کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں سمجھ بوجھ ہوتی تو جی بی میں اتحاد کرتے. انہوں نے اگلے سال آزاد کشمیر الیکشن میں بھی رونا ہے. فضل الرحمان الزامات لگانے سے پہلے تحقیق کر لیا کریں. شبر زیدی نے الزامات کی تردید کی ہے. صوبائی معاون خصوصی فردوس عاشق اوان بولی عوام نے ذل سبحانی کا ملک دشمن بیانیہ ان کے منہ پر دے مارا. جتنا شور مچاؤ جواب دینا ہی پڑے گا. برابر مواقع نہ ہونے کے باوجود پیپلز پارٹی نے جی بی میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے. بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹر پر گراف شیئر کر دیا.
ग्राफ के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 25%, पीटीआई 24% और नून लीग ने 12% वोट हासिल किए। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पुरअमन तरीके से हुए। रिजल्ट की तैयारी भी शफाफ थी। गैर सरकारी तंजीम फाफर ने इंतखाबात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, चंद पोलिंग स्टेशन पर बदमज़गी के वाक़यात हुए। 20 हल्कों के नताइज के मुताबिक टर्न आउट 60% रहा। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इक़दामात करे। कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी। वबा एक दिन में 37 जानें ले गई। 2208 नए केसेस। रजिस्ट्रार कॉमसेट यूनिवर्सिटी कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। दियाए खान में गोमल वेटरनरी एंड एनिमल कॉलेज कोरोना केसेस सामने आने पर बंद। कोरंगी नंबर 4 कराची की मोबाइल मार्केट भी सील। बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। तमाम पब्लिक मकामात पर मास्क लाजमी करार। तफरीह मकामात शाम 6 बजे। शॉपिंग मॉल्स, मार्केट, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद होंगे। तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला 23 नवंबर को होगा। स्कूल्स कब बंद होंगे? वफाकी वज़ारत तालीम ने तालीमी इदारों के लिए तजावीज़ सूबों को भिजवा दी। तालीमी इदारों को 24 नवंबर से 31 जनवरी तक बंद करने की सिफारिश। 24 नवंबर से प्राइमरी स्कूल्स, 2 दिसंबर से मिडिल और 15 दिसंबर से हाई सेकेंडरी स्कूल्स बंद करने की तजवीज़। असातिज़ा को इदारों में बुलाकर ऑनलाइन एजुकेशन के लिए तैयार करने की भी सिफारिश। तालीमी सेशन को 31 मई तक बढ़ाने, मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात जून 2021 में लेने की तजवीज़। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, स्कूल्स के बारे में आइंदा 1-2 रोज में फैसला हो जाएगा। आजाद कश्मीर में 21 नवंबर से 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम सियासी, मजहबी और समाजी इज्तिमात पर पाबंदी होगी। मास्क न पहनने पर 500 रुपए जुर्माना होगा। तमाम सरकारी और निजी दफातर में 50% अमला काम करेगा। तालीमी इदारे और मदारिस बंद रहेंगे। किराना दुकानें, मेडिकल स्टोर, बेकरीज, दूध दही की दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। सयाहों की आमदोरफ्त पर पाबंदी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट SOPs के तहत चलेंगे। शादी हॉल्स बंद रहेंगे। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। तमाम शॉपिंग मॉल्स, तजारती मराकज, हर तरह की तजारती सरगर्मियों के लिए बंद रहेंगे। हर शहरी कौमी राब्ता कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद का पाबंद होगा। इंडोर शादी हॉल्स में तकरीबात पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा गया, राब्ता कमेटी के फैसलों की खिलाफ वर्जी करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। पॉलिसी बनाना एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है। मदाखलत अदालती दायरा इख्तियार से बाहर है। अदालत सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की सूरत में मदाखलत कर सकती है। कमेटी के फैसले शहरियों के हक की जिंदगी से मुतालिक है। कौम को वबा से नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच चुका। वायरस को रोकना सिर्फ हुकूमत नहीं, हर शहरी का फर्ज है। कौम के पास वबा का मुत्तहिद होकर मुकाबला करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। कोरोना के दौरान जलसों पर पाबंदी। केपी हुकूमत ने अपोजिशन से बातचीत के लिए कमेटी बना दी। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, कोरोना केसेस बढ़े तो अपोजिशन पर मुकदमात होंगे। अपोजिशन को जलसों से नहीं रोक रहे, शौक से जलसे करें। मुज़ाकरात के लिए नहीं आएंगे तो कोई जबरदस्ती नहीं। हमें अवाम की, अपोजिशन को अपनी करप्शन की पड़ी है। हर तरफ VIP कल्चर के तहत रूट लगे हैं। क्या ऐसी होती है रियासत मदीना? बल्दियाती इलेक्शन ना कराकर अवाम के हुकूक पर डाका डाला जा रहा। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खैबर पख्तूनख्वा लोकल गवर्नमेंट एक्ट से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, आइन पर अमल दरामद ना हुआ तो केपी हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई करेंगे। 14 माह गुजर चुके, बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं कराए?
वजीर आजम इमरान खान अहम दौरे पर कल एक रोज के लिए अफगानिस्तान रवाना होंगे। दौरा अफगान सदर की दावत पर किया जा रहा है। इमरान खान अफगान अमन और दो तरफा ताल्लुकात पर बात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कमांडर कतर एयरफोर्स की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी और पेशा वराना दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान कतर के साथ बरादराना ताल्लुकात की बहुत कदर करता है। पाक फौज कतरी मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाना चाहती है। कमांडर कतर अमीरी एयरफोर्स मेजर जनरल सालम हमद अकील की नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद आमद गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर मज़ार कायद पर हंगामा राई केस में क्लियर। कराची की अदालत ने केस खारिज कर दिया। अदालत ने कहा मुस्तकबिल में अगर मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद मिले तो मुकदमा दोबारा चलाया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब का फैसलाबाद के लिए बड़े पैकेज का ऐलान। शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए 13 अरब रुपए दिए जाएंगे। उस्मान गुजार कहते हैं पैकेज से सेहत और तालीम की सहूलियात बेहतर बनाएंगे। फैसलाबाद पाकिस्तान का मैनचेस्टर है। हमारी हुकूमत ने कारोबार में आसानियां पैदा की। वज़ीर आला पंजाब से ऑल पाकिस्तान माइंस एंड मिनरल्स एसोसिएशन के वफ्द की भी मुलाकात। उस्मान गुजार ने कहा माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी को सूबे में फरोग देंगे। पंजाब हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम हफ्ता-ए शान रहमत लिल आलमीन नर्सिंग कॉलेज लाहौर जनरल अस्पताल में महफिल मिलाद का इनेकाद। तालिबात ने नजराना अकीदत पेश किया। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम गवर्नमेंट कॉलेज कूपर रोड में हुस्न क़िरात के मुकाबले। साहिवाल के मुख्तलिफ स्कूलों में भी नातिया मुशाहिरे। शेखुपुरा में तलबा के इस्लामी खताती के फनपारों की नुमाइश। DPS गुजरांवाला में महफिल मिलाद। मुल्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की ज़ेरे एहतमाम मिलादुन नबी की तकरीब सजी। बहावलनगर, फोर्ट मनरो और चोटी ज़ेरी में रैलियां निकाली गई। बाराचनार में अफसोसनाक वाकया। कुरम के सरहदी गांव में मकान की छत गिरने से 6 खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक। शादी की तकरीब वाले घर की छत गिरने से 30 अफराद मलबे तले दबे। जबरी अगवा, ज्यादती और नाजेबा वीडियो बनाने वालों को सजाए मौत। रावलपिंडी की सेशन अदालत ने फैसला सुना दिया। मुलजिम सुहेल अयाज पर 3 कमसिन बच्चों के साथ ज्यादती, अगवा और वीडियो बनाने का जुर्म साबित। 3 बार सजाए मौत, 3 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मुतासरा खानदान को 5-5 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का भी हुक्म। टंडुअल अहियार में फायरिंग। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के वाइस चेयरमैन अल्ताफ जस्कानी जाँ बहक। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो जांबर ना हो सके। गुजरांवाला की तहसील नौशहरा विरका की कचहरी में गोलियों की तड़तड़ाहट। पुलिस हिरासत में पेशी पर आए बाप बेटा कत्ल। मकतूलीन पर 4 अफराद को कत्ल करने का इल्जाम था। बाबर आजम ने बड़े मुकाबले को यकतरफा बना दिया। कराची किंग्स को पहली बार PSL चैंपियन बना दिया। अकेले ही लाहौर कलंदर्स पर भारी पड़ गए। 135 रन का हदफ 19वें ओवर में ही पूरा कर लिया। स्टाइलिश बाबर आजम मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज और बेस्ट बैट्समैन के अवार्ड भी ले हुए। सीरीज के टॉप स्कोरर बनकर पिछले रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। उम्मीद से बरक्स। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में हलाकत को खुशी की खबर करार दिया था। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की नई किताब में इंकिशाफ लिखा, मेरा ख्याल था उसामा की हलाकत पर सबसे मुश्किल फोन कॉल पाकिस्तानी सदर को होगी। वाक़े के बाद पूरे मुल्क का दबाव उन पर होगा कि पाकिस्तानी सालमियत को तज़हीक पहुंची। राब्ते पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आसिफ जरदारी ने कहा जो भी रद्देमल हो मगर ये बहुत खुशी की खबर है। अलबत्ता जो बाइडन ने एबटाबाद में ऑपरेशन ना करने का मशवरा दिया था।
जर्मन शहरी लॉकडाउन और पाबंदियों से तंग सड़कों पर निकल आए। बर्लिन में हजारों अफराद का पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज, पुलिस के साथ झड़पें। उधर अमरीकी कंपनी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन ने सेफ्टी चेक पास कर लिया, अफादियत 95% है। अमरीका का अफगानिस्तान और इराक में फौजियों की तादाद मजीद कम करने का ऐलान। अमरीकी फौजियों को जनवरी के वक्त तक वापस बुला लिया जाएगा। सदर ट्रंप ने इंतखाबात में धांधली रोकने में नाकामी पर साइबर सिक्योरिटी के सरबराह को ओहदे से बरतरफ कर दिया। और ये शाहकार सोने चांदी से नहीं बने। मिस्र के 62 साला फनकार ने माचिस की तीलियों से फनपारे बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। महारत ऐसी जो देखे तारीफ किए बगैर रह न सके। क्या आप जानते हैं मुंह के 80% जरासीम दांतों पर होते ही नहीं। 80%? नया कोलगेट टोटल डिफरेंट है। ये टीथ, टंग, चीक्स और गम्स के जरासीम से लड़ता है।